اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خدا کے بہت ہی زبردست خادم اور خدا کا ایک سورما، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، پاسٹر نوید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم بلا کسی تاخیر کے پاسٹر نوید صاحب کی طرف جائیں اور ان سے بات چیت سٹارٹ کریں اور آپ کے سوالات آپ کے سامنے لائیں اور آپ دیکھیں کہ خدا کے خادم خدا کے کلام کی روح میں کیا جوابات دیتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں پاسٹر نوید سے۔ جی سر، خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو، کیسے ہیں آپ سر؟ سونو بھائی، خداوند کی تعریف ہو، آپ کی بھی سلامتی ہو، اور خداوند کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ممنون ہوں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے جو نسل نو کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو خوب برکت عنایت فرمائے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور سر سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمارے اس پروگرام میں آپ نے آنا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ تھینک یو سو مچ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے۔ اور ہمارا جو پورا ایک پروگرام ہے، یہ ایک پوری سیریز ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس میں آپ کو میں گاہے گاہے انوائٹ کرتا رہوں اور آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیتے رہیے گا۔ تو سر صرف ایک عرض کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ میں یقیناً مصروفیات زندگی تو ہیں، اور وہ تمام تر خداوند کے کام کے لیے اور اس کے جلال کے لیے ہی ہیں۔ تو جب بھی کبھی آپ آواز دیں گے، جتنا میں ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ، ایون آپ کے ذریعہ، آگاہی کے ذریعہ نسل نو تک پہنچانے کی ہر ممکن طریقے سے کوشش کروں گا۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، وی آر ریئلی گریٹفل آپ کی اس محبت کے لیے جو آپ ہمارے لیے اور پوری کرسچن کمیونٹی کا جو یوتھ ہے اس کے لیے دکھاتے ہیں۔ آپ جیسے خادمین کے لیے ہم خدا کے بہت شکر گزار ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے ہم آگاہی لے سکتے ہیں، جن سے ہم آج کل کی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو سر کچھ سوالات ہیں جو ہماری آج کل کی نوجوان کی نسل کو پیش آتے ہیں، جی جی، جو شاید سوری ٹو سے میں کسی نیگیٹو وے میں نہیں کہوں گا، میں ایک پازیٹیو وے میں کہنا چاہوں گا کہ شاید وہ ان کی ضرورت ہے لیکن وہ ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ تو اس کے لیے یہ پروگرام سٹارٹ کرنے کا ہمارا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں، ہمارے یوتھ کے لڑکے لڑکیوں کو جو بھی ان کو روٹین میں چیزیں فیس کرنے کے لیے، ان کو جو اگر وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ نہیں پاتے خادمین سے، تو وہ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے سر وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کو اس کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کو کچھ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہوں گی ان کی روٹین لائف میں؟ سب سے پہلے تو بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ ماہرین کو اور خدام مسیح کو اور علماء کو اس آگاہی کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے بلاتے ہیں تاکہ نسل نو کے لیے وہ واقعی آگاہی اور سبق اور درس دینے کا سبب ٹھہریں۔ میں اپنے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ یقین جانیے میں سوالات کے جوابات دینے میں کوئی زیادہ ماہر نہیں ہوں۔ نمبر دو، نہ ہی میں علماء کی فہرست میں آتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کا ایک پیروکار ہوں، ایک خادم ہوں، بس میرے لیے اس سے بڑھ کر عزت کی کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ رہی بات ان سوالات کی جن کو آپ کرنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میرے تجربہ میں اور جو میرے علم میں ہے اس کے مطابق میں ہر ممکن طریقے سے کوشش کروں گا
के जवाब दिए जा सकें। और मैं एक अरसा से इस बात से मुताल्लिक कभी महसूस करता हूं कि नस्ले नो को इस वक्त बल्कि बरसों से, जैसा आपने प्रोग्राम शुरू किया, इस तरह के किसी प्रोग्राम की जरूरत थी जिसमें वाकई उनके कई किस्म के मसीही ईमान की बेसिक्स के ताल्लुक से भी सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक वो देने से आजिज हैं। सरजमीन पाकिस्तान से इवन दुनिया में जहां कहीं उर्दू दान और पंजाबी दान हमारे मसीही भाई बहनें हैं, बिलखुसूस नौजवान आए दिन कोई ना कोई सवाल व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे करते रहते हैं, मुझे कुछ समझते हैं, इज्जत देते हैं, और मैं उनका ममनून हूं कि इस तरह की बातें पूछते हैं। और अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऐसे नौजवानों को प्रोवाइड किया जाए तो मैं सोचता हूं यह सबसे ज्यादा बेहतर काम होगा। क्योंकि बाय द वे, कोई काशिफ अगर है, मुझसे कोई एक सवाल पूछता है, मैं काशिफ को तो जवाब दे दूंगा, लेकिन यह सिर्फ काशिफ तक पहुंचेगा ना, बाकी पूरी कम्युनिटी तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? तो आगाही ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिया से मेरी आवाज कौमों और उम्मतों तक पहुंच सकती है और नस्ल नौ तक पहुंच सकती है। और मैं कहूंगा कि वाकई नौजवानों की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, आइंदा भी आपने लिस्ट तैयार की हुई होगी, पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, हम जरूर मिलकर उन नौजवानों की जरूरत को मलहूज़े खातिर रखते हुए उनके सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात देने के लिए कोशिश होगी। सर थैंक यू सो मच। और आपकी ये जो मोहब्बत है हमेशा हमें आपकी तरफ खींचती है कि आप इतनी मोहब्बत से हमेशा, जब भी आपको किसी चीज के लिए कांटेक्ट किया है, आपने इसी मोहब्बत से कि मैं कोई आलम नहीं हूं, हालांकि आप खुदा के सूरमा हैं, और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारी कम्युनिटी में आप जैसे लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको खुदा ने इतनी बरकत दी हुई है, जिनको हम किसी भी एंगल से कुछ भी पूछ सकते हैं। और खुदावंद का शुक्र है आप जैसे खादमीन के लिए कि वो स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरीकों से हमें जो है वो आगाह करते रहते हैं। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल जो है सर जी, वो ये मैं पूछूंगा कि मसीही नौजवान को किसी भी किस्म के प्रोफेशन को इख्तियार करने के लिए आप क्या हदायत फरमाएंगे? हमारी नौजवान लड़कियां और लड़के, आप क्या उनको गाइड करेंगे कि प्रोफेशंस के हवाले से किस तरह के प्रोफेशंस उनको चूज करने चाहिए? थैंक यू। मैं समझता हूं कि बिब्लिकली और वैसे भी बहसीयत एक मसीही ईमानदार और नौजवान होने के, कोई भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में कोई भी ईमानदार यकमुश्त छलांग नहीं मारेगा। उससे पहले उसको उस प्रोफेशन से मुतालिक कुछ जानना होगा कि ये है क्या, मेरे लिए फायदामंद है कि नहीं, इसके फ्यूचर के असरात क्या होंगे मुझ पर, मेरी फैमिली पर। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने से पहले नौजवान को मैं सिर्फ ये नसीहत करूंगा कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक इस बात को मलहूज़े खातिर रखे कि आया जिस प्रोफेशन को मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, इसके जरिया से खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा कि नहीं। और अगर ऐसा प्रोफेशन है जिसके जरिया से खुदावंद का नाम जलाल पाता है तो हालेलुया। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिससे खुदावंद के नाम को जलाल नहीं मिलता तो बेहतर यही है कि वो पीछे हटे। मसलन अगर कोई ऐसा नौजवान है, आईटी में जाता है या किसी स्कूल में एक मदरसे में पढ़ाता है मुदर्रिस की हैसियत से, या लैंग्वेज कोर्स करके लैंग्वेज टीचिंग करता है, या म्यूजिक सिखाता है, तो मैं समझता हूं कि ये कोई बुरी बातें नहीं है, ये अच्छा है वो कर रहे हैं। अगरचे मैं ये नहीं कहता कि ये खुदावंद के लिए है या दुनिया के लिए है, लेकिन ये ऐसा है जो चलता है इस दुनिया में। लेकिन जो भी काम करे, प्रोफेशन करे, उसको एक फार्मूला अपने जहन में रखना बहुत जरूरी है कि ये पेशा जो मैंने इख्तियार किया या कर रहा हूं, इसके जरिया से क्या खुदाबंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता है कि नहीं। और अगर नहीं मिलता,
बिब्लिकली कंट्रडिक्शन है, तो बेहतर यही है कि वो इसको पीछे छोड़ दे, दुआ करे, खुदा के लोगों से पूछे, मशवरा ले कि ये दुरुस्त है कि नहीं, उसके बाद अगर वो स्टेप लेना चाहता है तो ले। थैंक यू सो मच सर। और सर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्या प्रोफेशन जो है उनका ताल्लुक हमारे ईमान से भी हो सकता है? जैसे कि हमें कलाम मुकद्दस में नहमिया जो नबी था उसके बारे में मिलता है कि वो बादशाह का साकी था, और उसके बाद हमारी एक बहन है जिन्होंने ये सवालात उठाए, उन्होंने ये रेफरेंसेस दिए कि नुमान कोड़ी जो था उसको जो है वो नबी की तरफ से ये इजाजत मिली जब उसने कहा कि मैं बादशाह के साथ मुझे मंदिर में जाना पड़ता है, तो उसको नबी की तरफ से ये अलाउ किया गया कि ठीक है तुम जा सकते हो। तो इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में कलाम मुकद्दस की रो में क्या कहेंगे आप? जब आप कहते हैं कि प्रोफेशंस मसीही ईमान के बरखिलाफ भी जा सकते हैं कि नहीं, तो मैंने कहा पहली बात तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि अगर आपका प्रोफेशन खुदावंद के जलाल का सबब नहीं है तो फिर किसके जलाल का सबब है? जरा सोचना होगा हमारे नौजवान को। तो अगर खुदा के जलाल का सबब नहीं तो देखिए कि कहीं अबलीस के लिए फायदामंद तो नहीं है आलायकार जिससे अबलीस की वाह वाह हो, तो इससे जरा बच के रहना है। तो बिब्लिकली एक प्रोफेशन वो है जिसके जरिया से खुदा के नाम को जलाल मिले। ये बेसिक फार्मूला है और नौजवान को और हम सब को इस बात को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। रही बात, आपने बात की है नहमिया की और आपने बात की है नौमान कोड़ी की, जो अभी कोड़ी नहीं था, अभी उसका कोड़ जाता रहा था जिस वक्त की बात हो रही है। दो बातें यहां पर कहता चलूं कि जब हम किसी भी अहद अतीक के मारूफ शख्सियत को नबी की स्टैंप करते हैं तो बेहतर होगा कि जरा उसकी बैकग्राउंड को देखा जाए कि आया वो नबी था या कोई ऐसी मुअज़्ज़ज़ सेंट, ऐसी शख्सियत थी जिसके जरिया से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके जरिया से हमारे इल्म में इजाफा होता है और उसकी जिंदगी हमारे लिए सबक आमोज है। मैं सोचता हूं कि नहमिया एक अजीम लीडर था और एक अजीम लीडर होने की हैसियत से उसकी जोरत मंदाना काम के सबब से हमें बहुत कुछ सीखने का इत्तफाक होता है। याद कीजिए कि नहमिया का ये प्रोफेशन या ये पेशा नहीं था कि वो बादशाह को शराब पिलाता था। अव्वल तो ये बात भी नहीं है कि वो बादशाह को शराब पिलाता था, ये बात भी बिब्लिकली गलत है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो खुद कहता है कि मैं बादशाह का साकी था, पहले बाब की आखिरी आयत में। तो साकी होता है मैं पिलाने वाला। तो अगर हम तर्जमे को देखें तो मैं का जो लफ्ज है इसके ये जरूरी माना नहीं है कि लाल परी या पंजाबी च कहंदे ने कोड़ा पानी, ना 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 ना, जरूरी नहीं है। यानी मैं के कई एक माना बिल्कुल 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 और अहद जदीद में भी आते हैं। जरूरी नहीं ये कसीफ की हुई मैं हो। बहरहाल जो भी थी, बादशाह जो दुनियादार बादशाह थे वो कौन सा कोई अंगूरों का फ्रेश जूस ही पिएंगे, लेकिन पॉसिबल है कि वो अंगूरों का फ्रेश जूस ही हुआ हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नहमिया एज ए प्रोफेशन उसने ये साकी होना नहीं अपनाया था। बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा सबूत नहीं कि नहमिया ने एज ए प्रोफेशन इस बात को अपनाया था कि वो बादशाह का साकी हो, मैं का प्याला बादशाह के हुजूर ले जाकर पेश करे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनको असीर करके ले जाया गया था और अब इन असीराने इस्राइल और यहूदा से जिन ममालिक में उनको ले जाया गया उनसे सख्त मशक्कत ली जाती थी। और यहां तक कि मैं कहूंगा कि अब नहमिया को ये शायद वो एक ऐसा शख्स था जो बड़ा वफादार निकला, अच्छा शख्स था, जिस सबब से बादशाह के हुजूर उसको लाकर एक गुलाम की हैसियत से, एक नौकर की हैसियत से
एक बैरा की हैसियत से उसको खड़ा किया गया, और बादशाह का ट्रस्ट उस पर ऐसा कायम हुआ कि वो बादशाह के हुजूर मैं लाता था, और जरूरी नहीं कि सिर्फ वो शराब पिलाने वाला था, शराब भी लाता हो, बिल्कुल। चाय भी लाता होगा, खाना भी लाता होगा, वी डोंट नो, लेकिन यहां पर सिर्फ यही लिखा है कि वो साकी के तौर पर था। वो वहां पर मजबूरी की हैसियत से था, असीर था, और बादशाह जो चाहता था उन लोगों से वो करवाता था, मशक्कत लेता था। लिहाजा मैं हरफ आखिर के तौर पर यह कहूंगा, नेहमिया का ये प्रोफेशन नहीं था, ही वॉज ए ग्रेट लीडर। बाद में आप जानते हैं कि उसने यरूशलेम में आकर क्या किया था, लेकिन वहां पर वो मजबूरी की हैसियत से ये काम उससे लिया जा रहा था। दूसरी बात आपने नौमान की है, और एक्चुअली ये आपकी बात तो है नहीं, ये किसी और ने सवाल पूछा है, तो इसलिए जी बिल्कुल बिल्कुल बात कहूंगा। नौमान जो शख्स था वो कोड़ी था, अलीशा नबी के पास आया, बिल आखिर अलीशा का जो नुस्खा था वो उसके काम आ गया, और किस्सा मुख्तसर बात कर रहा हूं कि नौमान आखिरकार शिफा पा गया। और जब मैं दूसरा सलातीन 5 बाब और उसकी 17 से 19 आयात में देखता हूं, मैं अभी तलावत नहीं करूंगा, मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि आप खुद जरूर इस हवाले को तलावत कर सकते हैं, दूसरा सलातीन 5 बाब की 17 से 19, तो आपको यह क्लियरली नजर आएगा कि कैसे नौमान शिफा पाने के बाद यह इकरार करता है कि आज मैंने जान लिया कि इस्राएल के खुदा के अलावा दुनिया में रूए जमीन पर कोई और माबूद नहीं है। नौमान ने इस बात को जान लिया कि इस्राएल का खुदा इज मोस्ट पावरफुल और कुदरत वाला है, और अब नौमान शिफा पाने के बाद वापस जाने लगा, और उसने इकरार किया कि मैं अब फला 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 के सामने कुर्बानियां नहीं करूंगा, यानी उसकी जिंदगी में चेंज आया है। लेकिन अब वो, यानी जरूरी नहीं कि वो अब इस्राएली हो गया था, मसीह पर यानी सॉरी याहवे खुदा पर ईमान ले आया था, लेकिन वो उसकी जिंदगी में चेंज जरूर आया था, खुदा दिल को जानता है। और अब अलीशा नबी से ये कहता है कि हुजूर अगर आप मुझे इजाजत दें तो जब मैं जाता हूं वापस आराम में, तो मेरे जो आका हैं, यानी बादशाह की बात कर रहा था क्योंकि वो बादशाह के हुजूर रहता था, और ये एक फौज का सिपा सालार और कमांडर था जी। और बादशाह ऐसे लोगों को एक कमांडो के तौर पर अपने साथ रखता था ताकि बहुत सारे खतरात से वो बचे। और जब बादशाह के साथ वो जाता था तो बादशाह जैसे कहता था उसको वहां पर करना पड़ता था। मैं यूं कहूंगा कि जब उसने कहा कि मैं फला मंदिर में जब अपने आका के साथ जाऊं, क्योंकि मेरा आका मुझ पर तकिया करता है, मुझ पर भरोसा करता है, मुझ पर यकीन करता है, तो जब मैं अपने आका के साथ जाऊं और वहां मंदिर में जाकर झुकूं तो मुझे इसकी इजाजत मिल जाए। तो अलीशा नबी जानते थे कि ये झुकने का मतलब ये नहीं है कि वो उस मंदिर में बुत को सब कुछ समझते हुए उसके आगे घुटने टेकेगा और कहेगा आप जिंदाबाद और याहवे खुदा कुछ भी नहीं। नो, उसने ऑलरेडी इकरार कर दिया था कि याहवे खुदा सब कुछ है, इसके अलावा कोई और खुदा नहीं। लेकिन चूंकि वो जिस बादशाह के हुजूर था, बादशाह के साथ काम करता था, उस बादशाह के साथ उसको जाना था, जिस सबब से उसने कहा कि ये तो मेरा काम है जिस पर मैं करता हूं, लेकिन एक बात यह है कि जब मैं बादशाह के साथ जाऊंगा तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इतनी मुझे इजाजत दीजिए। रही बात मेरे ज़हन मेरे दिल की, तो वो अब वो वाला पहले वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर नौमान की बात भी इस तौर पर फिट नहीं आती कि अलीशा नबी ने उसको इजाजत दी है कि जा तू बुतों के आगे भी सिजदे करता रहे और याहवे खुदा के भी गुण गाता रहे। ऐसा नहीं है, ये ताजीमन और एहतरामन, जैसे इंटीरियर सिंध में वडेरू के आगे साईं के आगे जरा यूं करके सलाम करते हैं,
तो इस घुटने पकड़ते हैं, पाँव में भी पड़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको खुदा मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि उस कल्चर की एक सकाफत है, उसके मुताबिक ताजीमन या एहतरामन इज्जत करते हुए उनके लिए वो सरनगू होते हैं, लेकिन ये उनको खुदा समझकर उनके आगे नहीं झुकते। लिहाजा हमें थोड़ा सा ये सोचना होगा, जिस किसी ने भी सवाल किया मैं उन पर कोई दोष नहीं लगाता, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा। ना नेहमिया प्रोफेशनल साकी था, ना ही नौमान के बारे में मैं कहूंगा कि उसको अलीशा ने ये इजाजत दी कि जा और तू मंदिरों में सजदा भी करता रहे और याहवे खुदा के भी गुण गाता रहे। ये मुख्तसर सी बात मैंने आपकी खिदमत में की। तो इससे नवीद साहब, इससे क्या समझें हम कि अगर किसी को कोई अगर ये कहता है कि मैं दिल से जो है वो खुदा को, जो यहोवा खुदा है, उसको मानता हूं, लेकिन मुझे प्रोफेशनली ऐसा करना पड़ रहा है, मेरे माइंड में वो नहीं है, मैं किसी को इबादत के तौर पर किसी के आगे नहीं झुक रहा, तो क्या वो कर सकता है किसी दूसरी इबादत गाह में जाकर वो कुछ इस तरह का कर सकता है? क्या हम इसको समझें कि अगर उसको प्रोफेशनली ऐसा करना पड़े तो वो ऐसा कर सकेगा? मैं तो कभी भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा, मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा कि एक मसीही मोमन या मसीही ईमानदार एक नौजवान शख्स किसी भी माबूद के आगे जाकर झुके और इधर यीशु के भी नारे लगाता रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एज ए प्रोफेशन भी नहीं। यस, अगर आप नौमान की बात को बुनियाद बनाकर बात करते हैं तो फिर यानी ये बात जो आपसे करवाई गई है, अगर नौमान की बात को कि अलीशा ने इजाजत दी कि जा, क्योंकि उसने कहा कि मुझे सिजदा करना है तो करने दो, बात ये नहीं है। अलीशा ने उसको ये नहीं कहा था कि ठीक है तुझ पर स्टैंप लग गई है, तू मोर हो गई है, अब तू यावे खुदा का है और अब तुझे डुबकी भी दे देता हूं वगैरह 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 वगैरह। नो 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 नो, एक्चुअली अलीशा ने उसको मजबूर थोड़ा ही किया था कि तुम यावे खुदा के गुण गाता रहे, ये उसकी अपनी बात थी। तो अब अलीशा कन्वर्ट करने वाला शख्स नहीं था, उसने कहा जा तेरी मर्जी जो तू करे, जो इस्राएल का खुदा है अगर तुम उसके पीछे चलते हो तो चलो, अगर किसी और के पीछे चलते हो तो तुम उसके पीछे चलो, जो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन चूंकि एक नौजवान का सवाल है ये, तो मैं उस नौजवान को ये कहूंगा कि भाई खुदावन ने अगर आपको मसीही ईमान में बुलाया, कायम किया, जड़ें मसीह में मजबूत हैं, तो आप मसीह के गुण गाएं। जो कुछ आप करते हैं सब खुदावंद के जलाल का सबब हो। पहला कुरिन्थियों 10:31 में हम वाज़े तौर पर देखते हैं, बस जो कुछ करो, कुरिन्थियों में 2-3 दफा लिखा है, वो खुदावंद के जलाल का सबब हो। तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी मूरत के आगे झुकने से खुदा का जलाल जाहिर होगा, मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करूंगा। एक मसीही को मसीही होने की हैसियत से जमीन का नमक और दुनिया का नूर बनना है। एक और बात यहां पर कहना चलूं भाई जी, कि अगर हम नेहमिया की और नौमान की बात करते हैं तो बाइबल में और भी मसाले हैं, उनको हम क्यों भूल जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल दानियल नबी की बाबत देखो, दानियल के साथ 3 और साथी भी थे जिनके नाम तब्दील किए गए और उनको सदरक, मिसक और अब्दनजू वहां के देवताओं के नामों से उनको नाम दिए गए। लेकिन बात यह है कि उनको भी तो कहा गया था कि तुम इस मूरत के आगे सिजदा करो वगैरह वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल। और आप ये बुतों की नजर की हुई खुराक भी खाओ, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदा के जलाल का सबब नहीं है। और नौजवानों सोचो कि कहां कहां आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी आजमाइशें लाहक होती है कि जहां पर आप दानियल की जगह पर हैं या सदरक, मिसक और अब्दनजू पर हैं कि मकाम पर, जगह पर हैं, और आपके लिए एक आजमाइश है कि आप मुंह मार लें। लेकिन दानियल, सदरक, मिसक और अब्दनजू की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है, ताकि उनकी जिंदगियों को देखते हुए अपनी जिंदगियों को एक सही
राह पर डालने वाले हो सके। थैंक यू। और मेरी इसी बारे में खुदा के खादम से बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि बेटे, नुमान जब आया था तो वो गैर कौम से आया था और वो सिर्फ शिफा लेने के लिए आया था, और उसको शिफा मिलने की वजह से, जैसा आपने बयान किया, कि वो यहोवा खुदा पर ईमान ले आया कि इसराइल का जो खुदा है वो ही एक पावरफुल खुदा है, वो एक खुदा है। तो क्योंकि जब वो जा रहा था तो वो क्योंकि गैर कौम से था, और उन्होंने कहा कि आज के दौर में अगर आपसे या किसी भी खादम से कोई गैर कौम से, जैसे हम देखते हैं चर्चेज में लोग प्रेयर करवाने के लिए आते हैं, तो हम उनको फौरन किसी बात के लिए आमादा नहीं कर सकते, या हम अगर खुदा हमें नहीं कह रहा क्योंकि खुदा ने अलीशा नबी को मना कर दिया उससे कुछ भी लेने से भी, तो उसने उसका हदिया भी लेने से मना कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि अलीशा नबी हदिया लेता नहीं था, लेकिन खुदा ने क्योंकि उसको नुमान से हदिया लेने से मना किया, तो उसने उसको मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे हदिये में से कुछ भी नहीं रखूंगा। और उस खादम ने, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि बेटे, वो ऐसे ही है जैसे आज कोई गैर कौम से हमारे पास प्रेयर करवाने के लिए आता है और वो अगले दिन जाके कहेगा कि मैं अपनी दुआ में झुकूंगा, मैं अपनी इबादतगाह में जाऊंगा, तो हम उसे कहेंगे कि आप जा सकते हैं। लेकिन कोई मसीही, जैसे आपने बयान किया बड़ी खूबसूरती से, कि कोई मसीही ईमान पर होते हुए इस तरह नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यहां तक भी कहूंगा कि कराची में बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स, हीलिंग मीटिंग्स हुई जहां पर मैं मुतरजम के फराइज भी सर अंजाम देता था। बहुत सारे मेरे जो अभी नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये नौजवान, ये जानते हैं इस बात को, खासकर अगर आप कराची से हैं तो, कि कई प्रोग्राम्स में कराची में 2-2 दिन का सफर करके शुमाली इलाका जात से लोग कराची में इन हीलिंग क्रूसेड में आए, गैर मसीही लोग। उनकी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर, और इवन आप जस्ट गूगलिंग करें आपको पता चल जाएगा, नवीद मलिक और पीटर यंगरन का नाम डालें आपको खुद ही पता चल जाएगा। और आप देखेंगे कि वहां पर कि वो गैर मसीही बुर्का पोश खवातीन आई, आंखों की बीनाई पाई, खुदावन ने उनको शफा बख्शी अपने खादमों के जरिया, और उसके बाद एक खातून अपने पास से एक थैली निकाल कर देने लगी, वीडियो मौजूद है, और उस बंदे ने कहा ये क्या है, और उसने फिर सामने रख के कहा ये आपके लिए है। फिर वो बंदा कहने लगा हमने मुफ्त पाया, हम मुफ्त देने वाले हैं, नहीं है, लिहाजा आप ये पैसे अपने पास रखें और आप जाएं सलामती से, खुदावंद ने आपको हील किया है। अब उन्होंने क्या फैसला किया, आई डोंट नो कि लेटर ऑन वो मसीह में आए या नहीं आए, हमारे साथ उनका राब्ता नहीं था। तो ये है जैसे आपने फरमाया, और जैसे ये जो खादम हैं जिन्होंने आपसे बात की, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आपने जो बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि अगर हम अपने आप को देखें कि कहीं हम सदरक मिसक अब्दुन्नजू की तरह या दानियल की तरह तो नहीं है, और जैसे हमें सदरक मिसक और अब्दुन्नजू का वाकया मिलता है, जब उनको नबूकदनजर ने कहा कि तुम्हें इसे सजदा करना है, तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उन्होंने पहले जाके ये रिसर्च की कि यहोवा जो खुदा है, क्या उसने आग में से किसी को बचाया है, तो उन्हें इसका कोई भी ऑथेंटिक वाकया मौजूद नहीं मिला जी। क्योंकि उन्होंने देखा कि क्योंकि उससे पहले ये एक ख्याल पाया जाता था कि हवा का खुदा है, और जैसे बुत परस्तों में था कि हवा का खुदा है, पानी का खुदा है, आग का खुदा है, तो उन्होंने ये जाके देखा कि क्या यहोवा खुदा जो है उसने आज तक आग से किसी को बचाया है। और जब उनको इस बात का कोई भी हवाला नहीं मिला, तो उन्होंने आके वो स्टेटमेंट दी कि नबूकदनजर, हमारा खुदा हमें इस आग में से बचाने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन आमीन। ऐसे और ही ये वाकया उनके ईमान ने, मैं ये कहूंगा कि ये वाकया उनके ईमान ने बाइबल में दर्ज करवाया है कि खुदा ने उन्हें आग में से बचाया है। आमीन आमीन। दैट्स वंडरफुल। तो ये अगर हम रूटीन की बात करें तो उनके पास भी ऐसे एक्सक्यूजेस थे जो आज हम देते हैं रूटीन में कि खुदावन तेनू ते पता ही है मजबूरन इंज करना पैंदा है। ऑफ कोर्स वो भी ये सोच सकते थे कि खुदावंद छोटे छोटे बच्चे ने जिंदा रह के भी ते तेरी खिदमत करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उन्होंने जरूरी समझा कि हम अपने खुदा के अलावा किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बेशक जान जाए तो जाए।
वो रोल मॉडल है हमारे लिए, कंप्रोमाइज ना करने के एतबार से। कंप्रोमाइज ना करने के लिए, बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के लिए भी। जी तो नाजरीन, प्रोग्राम आगाही इसी तरह जारी रहेगा, और क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम यही सिलसिला पास्टर नवीद मलिक साहब के साथ इसी जगह से फिर से स्टार्ट करेंगे, और कुछ सवालात जो अभी भी पेंडिंग हैं, जो हमारी कुछ बहनों ने, हमारे कुछ भाइयों ने उठाए, और नवीद साहब हमारे साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और हम उनसे यही सवालात पूछेंगे और ये सिलसिला यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे, और देखते रहिए हमारे साथ प्रोग्राम आगाही। और हमें टेक्स्ट करने के लिए आपके पास नंबर स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, और कॉल करने के लिए भी आपको नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी सवाल जो आपके दिल में है, जो आपको रूटीन में फेस करना पड़ता है, हमें बता सकते हैं। हम मिलवाएंगे आपको एक्सपर्ट के साथ जो देंगे आपके सवालात के जवाब। और आज के प्रोग्राम के साथ मुझे इजाजत दे दी। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ सोनू, और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद यस्सु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो।